Hi students, how are you all? This is your English grammar class and I'm your teacher Miss Hifsa. I'm here today with a new topic which is very interesting for you. But before going to that, let's first discuss your homework of different parts of speech. You remember this was your homework sheet. So what you have to do, you have to put different parts of speeches in these different boxes. So have you done your homework? Let's revise it. The first word did is a verb, so you are supposed to write it in the box of verb. Me is a pronoun, blue is an adjective, Mary is a noun, it is the name of a person, I is an pronoun. You remember it? I, we use it for pronoun. She is also a pronoun, and is conjunction because it is used to join two words or two sentences. America is a noun, no, it is a verb, quickly, it is an adjective, no, it is an adverb because it has ly in the end. Have you noticed it? It has the word ly at the end, so it is an adverb. Then in is a preposition, excellent is an adjective, on is again preposition, ouch, it is an interjection. But is a conjunction, it is used to join two words or two sentences. Cat, noun, under, preposition, sh. This word sh. When we say that, when we told someone that keep quiet, so we use this word sh. Sh. We do it like this, sh. So it is an interjection. Kindly, again ly at the end, so it is an adverb. Herself is a pronoun, so is a conjunction. Want is verb. Easy is an what? Easy is an adjective because when we say it is a very easy work, so here it is modifying work, so it is an adjective. Slowly, again ly at the end, it is an adverb. Piv, it's again an interjection because we have mark of exclamation here. He is a pronoun, be is a verb, house is a noun, carefully adverb, wow interjection, between preposition, run verb or conjunction, pen a noun, modern adjective, pretty adjective. Now, what is the word now here? It is also an adjective. Then word if is a conjunction because it is also used to join two sentences. When we say that if I came late, the bus would be late. Okay, then the word goosh is also an interjection. Then behind is a preposition. Clear? Have you done your homework? Now check your homework along with this page. Then we have another parts of speech, which is another sheet which is for your parts of speech as a homework. The teacher's shoes are red. The teacher's shoes are red. Which one is the underlined word? Shoes. So here the word shoes is used for teacher's shoes. It is a noun. So encircle the option noun here. I always walk to school. Here the word walk is a verb. The cat sleeps all day. Here the word cat is underlined. As you know, it is a noun because it is the name of an animal. He had a green ball. Here green is modifying the word ball, which is a noun, so it is an adjective here. Grandma baked cookies. Here the word baked is a verb because she is doing an action. Then look at another sentence. The baby drank milk. Here the word drank is underlined, which is a verb because the baby is doing an action. John ate an apple. Here apple word is underlined, which is a noun because it is the name of a fruit. She looked for the yellow book. So here the word yellow is underlined, which is an adjective. As you know that all colors are adjectives. Now let's come towards our new topic, which is articles. What is it? Articles. Say it again. Articles. And now what are articles? Let's define it.
Articles are word, a, an, and the. Articles are word, a, an, and the. These are the three articles. Only these three words are articles, a, and the. Like आप लोगों ने जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी तक पढ़े वो डिफरेंट थे, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। इनमें से ये एक अलग है जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये क्योंकि ये एडजेक्टिव्स के एक टाइप में भी आता है, लेकिन ये हम यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा। जिस तरह वर्ड अ लगाते हैं हम, एन लगाते हैं, द लगाते हैं। सो दीज आर 3 आर्टिकल्स। और इनके अलावा और वर्ड्स को हम आर्टिकल्स नहीं कहते। जिस तरह नाउन्स बहुत ज़्यादा थे, दुनिया में जितनी भी चीज़ें, हर एक चीज़ के नेम को नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव्स बहुत ज़्यादा है, वर्ब बहुत ज़्यादा है, लेकिन आर्टिकल जस्ट ये 3 वर्ड्स हैं, अ, एन, एंड द। दीज 3 वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स। Articles are a, an, and the. This would be its definition. Articles are a, an, and the. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम a कहाँ यूज़ करते हैं, एन कहाँ यूज़ करते हैं, एंड द कहाँ यूज़ करते हैं। I is used before words beginning with consonant sound. Only a, e, i, o are vowels. All other letters are consonant. As you know, vowels और consonants जानते हो ना। vowels just 4 words हैं, हम 5 words हैं हमारे पास, a, e, i, o, u. These letters are, these alphabets are just vowels. इनके अलावा जितनी भी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। लेट्स डिस्कस इट। एन वर्ड जो है ए एन, जैसे ये लाइक ये 2 लेटर्स हमने इकट्ठे किए हैं जिससे एक वर्ड बना है एन, तो ये हम वोवल के साथ यूज़ करते हैं। जब एक नाउन वोवल से शुरू होता है तो हम उससे पहले एन लगाते हैं। बट रिमेंबर दिस, जब वो एक हो, जब कोई चीज़ एक हो और वो वोवल वर्ड से लेटर से स्टार्ट हो रहा हो तो हम उसके सामने क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। यूज़ एन व्हेन द नाउन बिगिन्स विद अ वोवल, ए, ई, आई, ओ, यू। व्हाट आर वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। दिस 5 लेटर्स आर वोवल्स। तो जब एक वर्ड इन 5 लेटर्स में से एक से स्टार्ट होता है, जब एक नाउन और वो एक हो, जब हम एक चीज़ की बात कर रही हो तो हम उनके साथ क्या लगाते हैं, वर्ड एन लगाते हैं। लाइक लुक एट एग्जांपल, एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। यहाँ पे ये देखें, ये वर्ड एन हमने साथ में इसलिए लगाया है कि एक तो ये हम एक एप्पल की बात कर रहे हैं, वो एप्पल कोई सा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लुक एट इट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट एप्पल का क्या है, अ है, तो इसके सामने हमने एन लगाया। क्यों, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे हमारे साथ वोवल्स है। यू कैन सी फर्स्ट में ए है, देन ई है, देन आई, देन ओ एंड देन यू। तो इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जब हम बात करते हैं आई लाइक एन एप्पल, आई लाइक एन एप्पल, एक एप्पल की हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हम साथ में एन लगाते हैं। आई ईट एन एग, मैंने एक एग खा लिया, आई ईट एन एग। यहाँ पे वर्ड एन इसलिए लगा है क्योंकि ई वोवल से स्टार्ट हो रहा है। एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, आइसक्रीम में से वर्ड आई से लेटर आई से स्टार्ट होता है, तो इस वजह से हमने साथ में एन लगाया। क्लियर। नाउ लुक एट अनदर वर्ड दैट इज अ, जस्ट अ, जिस तरह फर्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारा अ। सो जैसे हम ए कहते हैं, ये हम कहाँ पे लगाते हैं, यूज़ अ व्हेन द नाउन बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट, जब सिंगल नाउन की बात हो रही हो लेकिन वो कॉन्सोनेंट, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। सो अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो और हम एक ही चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हम साथ में अ लगाते हैं। जैसे अ बैग, अ कैट, अ शू, अ ट्री। आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है। सो हियर द वर्ड अ इज़ यूज्ड। क्यों, क्योंकि बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ये तो ए, ई, आई, ओ, यू में नहीं है। देन अ कैट, यहाँ पे सी इज़ अ कॉन्सोनेंट, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी हैं वो सारे हम क्या कहते हैं, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और जो वोवल से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे हम एन लगाते हैं, लेकिन जब सिंगल चीज़ की बात हो रही हो। क्लियर। लाइक हम इस तरह नहीं कह सकते अ बैग्स, बैग्स जब प्लूरल हो फिर हम आर्टिकल अ साथ में नहीं लगाते। क्लियर।
अब हम द कहाँ पे लगाते हैं? यूज़ द फॉर अ स्पेसिफिक आइटम। जब आप लोग एक स्पेसिफिक आइटम, एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रही हो, एक पर्टिकुलर चीज़, एक ख़ास चीज़ की बात हो रही हो, तो हम उसके साथ द लगाते हैं। द कैट इन द ट्री, लुक एट एग्जाम्पल, द कैट इन द ट्री। कौन सी कैट? वो वाली कैट जो ट्री में है, और एक ही ट्री में होगी, वो पर्टिकुलर ट्री में, तो हम कहते हैं द कैट इन द ट्री। अ कैट नहीं, अ कैट कोई भी कैट हो सकती है। द कैट एक खास कैट, जिस तरह आप लोग के घर में अगर कैट हो जिसे आप लोग ने एज अ पेट पाल रखा हो, तो उस कैट की जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे द कैट विच आई हैव, वो वाली कैट जो मेरे पास है। द एप्पल्स इन द बास्केट, कौन से एप्पल्स? जो कि बास्केट में है। सो हेयर द इज स्पेसिफाइंग इट, जस्ट वो वाले एप्पल, ये वाले एप्पल, वो वाले एप्पल नहीं जो दुनिया में कहीं पे भी है, जस्ट वो वाले जो बास्केट में है। द बास्केट एक पर्टिकुलर बास्केट में होंगे। द हाउस ऑफ माई अंकल, द हाउस कौन सा घर? क्योंकि अंकल का घर है, स्पेसिफाई किया है, एक खास घर की बात हो रही है, तो हम साथ में द लगाते हैं। द हाउस ऑफ माई अंकल, यहाँ पे द वर्ड हमारे पास क्या हुआ? आर्टिकल हुआ, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक हाउस की बात कर रहे हैं। एंड हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, द एप्पल्स, द एप्पल्स, वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि अ एंड एन कभी भी प्लूरल के साथ नहीं लगता, लेकिन द हम सिंगुलर के साथ भी लगा सकते हैं और प्लूरल के साथ भी लगा सकते हैं। क्लियर? अब आप लोग का एक होमवर्क पेज है, ऊपर लिस्ट ऑफ थिंग्स दी है, उनके नेम्स भी दी हैं। यहाँ पे नीचे सामने डिफरेंट वो चीज़ें बनाई हैं, और आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से डिफरेंट नेम्स ऊपर से पुट करने हैं, लेकिन साथ में आर्टिकल्स ए या एन लगाने हैं। द का यहाँ पे नहीं है, ओके। आप लोगों ने जस्ट अ या एन लगाने हैं। अगर वो वोवल से स्टार्ट होगा तो आप लोग क्या लगाओगे? एन लगाओगे। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो क्या लगाओगे? वर्ड अ लगाओगे। क्लियर? जिस तरह एक आप लोग के लिए किया है, केक की पिक्चर है और यहाँ पे लिखा है अ केक, एक केक। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों ने ये सारे फिलअप करने हैं। Hope this lecture would be clear to you. See you in my next lecture. Have a nice day. Bye bye.